تو کسی ایک نے فارچونر واپس کی کہ یہ پیسے تعلیم کے لیے دے دو. ایک غیرت مند کا نام مجھے بتاؤ کہ جس نے وہ فرنیچر جمع کرا دی ہو کہ یہ پیسے تعلیم کے لیے دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا میرے پاس سے وہ گزرے میرے حال تک نہ پوچھا، میرے پاس سے وہ گزرے میرے حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے مان جاؤں وہ کشمیر ہاؤس جا کے روئے. گزارش یہ ہے آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ غریب کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بھی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن اپنی سالمیت بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایسے نہیں جنگ لڑ رہے ہیں. اور آپ کی جنگ بھی ٹف چل رہی ہے. اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے یا ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی ہے، اس کا بچہ بکریاں چراتا ہے، خوشی سے چراتا ہے. ایک آدمی 500 بکری میں سے پہچان لیتا ہے کہ آج میری کون سی بکری نہیں ہے. وہ زیادہ ذہین ہے یا ان کے بچے زیادہ ذہین ہیں؟ ان کے بچے یہ جو بڑے بڑے جتنے ہیں نا، فلاں اس کا بیٹا فلاں اس کا بیٹا فلاں، فلاں اس کا بیٹا فلاں اس کا بیٹا فلاں، انہوں نے میٹرک کا امتحان دوسرے اسٹیشنوں پر جا کے دیا ہوا ہے. جو اس وقت آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ غدار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سب غدار ہیں. آپ غدار ہیں ان کی اشرافیہ کے خلاف. اگر یہ غیرت کر لیں پھر ہم ان کے غدار نہیں ہیں. جب تک یہ غیرت نہیں کریں گے آپ سب ان کے غدار ہیں. میں لچھے دار تقریر یہاں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ میں پیار کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. تقریر میں ادھر کرتا ہوں جب میرے سامنے وہ ہوتے ہیں. یہ لگی تقریریں کرنے مجھے مزہ ہی نہیں آتا ہے، پسے پشت باتیں کرتے ہوئے مجھے مزہ ہی نہیں آتا ہے. جس دور میں لٹ جائے کمائی فقیروں کی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ دل سے ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے ان سے کسی اسمبلی ممبر سے ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، نہ ہم نے کسی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے. ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس ریاست کے غریب لوگوں پر تم خرچ کرو. ان کو مر جانا چاہیے کہ ایک بچہ جس کا بھائی شہید ہوا ہے اس ایک بچے کو یہ نوکری نہیں دے سکے. 10,000 سے زیادہ لوگ انہوں نے ملازم بھرتی بھی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کیوں کی جا رہی ہے. یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے غلط ہے؟ ایک گزارش میری اور ہے کہ جو یہاں تاجر ہیں تھوڑا سا ہاتھ اوپر کریں، تھوڑا تاجر یہ تاجر ہیں صرف. اور ایک ہمیں یہ آپ اعتماد دے دیں کہ ہاتھ اوپر کر کے کھڑا کر کے بتائیں کہ 29 کو کون آپ میں سے دکان بند کرے گا. مار کو چھوڑو، دونوں کو چھوڑو. ایک میری گزارش سنو نا، میرے ہوگا نا، صبر کرو. ایک میری گزارش سنو، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ میں جوشیلی تقریر یہاں نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو یہاں تاجر بیٹھے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے بند بند، نعرہ کشمیر، یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن، اس کی خاطر، اس کی
بہت شکریہ ڈار صاحب. اسی دوران ممبر کور راجہ غلام مجتبہ صاحب دھیر کوٹ سے آئے ہیں اپنی ٹیم کے ہمراہ. باغ سے الیاس کشمیری صاحب. تمام دوستوں کو پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد میں 1 منٹ کے لیے ظفر اقبال کشمیری ترانہ پیش کریں گے. ظفر اقبال کشمیری صاحب. نعرہ تکبیر. بھرپور طریقے سے جواب دیں. ابھی ہم نے بہت جنگ لڑنی ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. آواز دو. آواز دو. ظفر صاحب. اس کے بعد میں چودھری عاقب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. چودھری عاقب. دشمن ہر دستور نامنظور نامنظور. طلبا دشمن ہر دستور نامنظور نامنظور. یہ وطن ہمارا ہے, اس کی خاطر ہم لڑیں گے. اس پہ حکومت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بند کمروں کی سیاست میرا منشور نہیں. بند کمروں کی سیاست میرا منشور نہیں. جو بات کہوں گا سرے بازار کہوں گا. جو بات کہوں گا سرے بازار کہوں گا. تم مجھے رات کی صحیح میں کب کرو گے. میں تمہیں صبح کی اخبار کی سرخی میں ملوں گا. میں تمہیں صبح کی سرخی میں ملوں گا. علیان گڑی بتا. میں آپ کی عظمت کو, آپ کی جرأت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. یقیناً آپ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کی طرح ہر ظلم کے خلاف, ہر جبر کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. لوگوں, میں آپ سے چند گزارشات کروں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایوان کے اندر, جب ایوانوں کے اندر عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں, جب وہ ایک مخصوص طبقات کی بات چیت کرتے ہیں, جب وہ مخصوص لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت عام لوگوں کے اندر سے, عام لوگوں سے عوامی تحریکوں کی صورت میں لوگ جمع ہوتے ہیں. پھر ایکشن کمیٹی کی صورت بنتے ہیں, پھر عوامی اتحاد بنتے ہیں. لوگوں, یہ وہ دلال لوگ ہیں جو اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں, جو صرف اپنی نسلوں کی بات کرتے ہیں, جو صرف ایک مخصوص طبقات کی بات کرتے ہیں, جو صرف اپنے پروٹوکول کی بات کرتے ہیں. لوگوں, ہم نے اپنی سیاست کے اندر ایک چیز کا تعین کرنا ہے کہ کیا ہمیں اس ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے جو ترپن دلال ہیں, کیا ہم نے ان کے ساتھ اپنا ہاتھ اور آنکھ ملانی ہے یا عوامی حقوق کی جدوجہد کرنی ہے. اس بات کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 53 کا ٹولہ ہے, اس میں جو 12 ماجرین کی نشستوں کا خاتمہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں فی الفور ان ماجرین کی سیٹوں کا خاتمہ کیا جائے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایوان میں بیٹھے باقی دلال ہیں, ہم ان کو بھی یہ واضح پیغام دیتے ہیں کہ ان کی بھی مراد کا خاتمہ کیا جائے, ان کے بھی پروٹوکول کا خاتمہ کیا جائے. لوگوں, ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ کی طرف سے یا حکمران طبقے کی طرف سے عام لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے, مگر ہم نے یہ واضح اور دو ٹوک موقف دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذاتی خواہشات کو بس کچھ ڈالتے ہوئے ہم نے اس تحریک میں حصہ لیا ہے. تو ہم کہتے ہیں
हम कहते हैं हमारे सीने हाजिर, हमारे सीने हाजिर, हमारे सर हाजिर, हमें अपनी जानों की कोई परवाह नहीं। हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम अवामी हकूक की जदोजहद की खातिर लड़ेंगे, मरेंगे, अवामी हकूक की जदोजहद करते रहेंगे। मैं अलियाने गड़ी दुपट्टा को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक खास बात आप लोगों से करना चाहता हूँ कि लोगों उस दिन हमारी ईद होगी कि जिस दिन 12 नशिस्तों का खात्मा होगा, जिस दिन हुक्मरान तबके के प्रोटोकॉल का खात्मा होगा, जिस दिन तलबा यूनियन बहाली होगी, जिस दिन तलबा यूनियन बहाली होगी। बहुत शुक्रिया। इल्म जदोजहद फतह। मेहरबानी होगी तमाम मुकर्रीन से गुजारिश करूंगा कि हमें सख्ती न करना पड़े। 1 मिनट से ऊपर अब कोई भी मुकर्रर बात नहीं करेगा। मैं कौमी कोर्ट से राजा बिलाल शमीम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा बिलाल शमीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं कोर कमेटी मेंबरान जनाब शौकत नवाज मीर साहब, राजा मुश्तबा साहब, राजा सोएब जवेद, आपको गई बटा की सरजमीन पर खुश आमदीद कहता हूँ। उसके बाद मैं अलियाने गई बटा को आज दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने तमाम तर मुश्किलात के बाद आज आकर 16 सितंबर को यहाँ पर एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और यहाँ पर ठागे मारता हुए ये समंदर उन सियासतदानों के मुंह पर एक जोरदार चपेट है जो ऐवानों में बैठकर अपने कारकुनान को ये हिदायतें दे रहे हैं कि आपने अवामी एक्शन कमेटी के साथ अलहदगी इख्तियार करनी है। मैं शार्ट वक्त में एक पैगाम खावड़ा की जानिब से उन 53 के टोले को देना चाहता हूँ कि 29 सितंबर को ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि आप यहाँ पर FC, PC चाहे जिसको भी लॉन्च करना है लॉन्च कर लो। मैं मुजफ्फराबाद की इस तमाम को ये बता देना चाहता हूँ कि हल्का खावड़ा में 24 अगस्त को कॉन्फ्रेंस के बाद जो माहौल वहाँ पे बना है, इंशाअल्लाह ताला 29 सितंबर को हल्का खावड़ा के अंदर आप ये देखेंगे, मुजफ्फराबाद के अंदर आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये हल्का खावड़ा के नौजवान जो राजा साहेब की क़यादत में, शौकत नवाज मीर साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला अपने हकों की जंग लड़ने के लिए, चाहे वो आप कोयला के मकाम पर हमारी टीम दिलवाए, ब्राडकोट के मकाम पर टीम दिलवाए या कोयला के पार मनी में कहेंगे तो वहां भी हम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी चारों के नजराने पेश करेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मुजफ्फराबाद जामे कश्मीर से आए हुए मेहमानों चौधरी आकिब साहब, चौधरी राहिल साहब, अशराफ क्यास, दानिश सादक चौधरी, असनाद चौधरी साहब, एहतशाम अवान साहब, अदीब राजा साहब, ज़ियाफत चौधरी साहब, तमाम नौजवानों का शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा अदनान सलेरिया साहब से कि वो आए और मुख्तसर अल्फाज में अपने ख्यालात का इज़हार करें। अदनान सलेरिया साहब। जल्दी, टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है, अब हम मुख्तसर कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो अहलियाने गड़ी दुपट्टा को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने आज यहाँ पर एक बेहतरीन मुनज़्ज़म और कामयाब हक मलकियत और हक हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। यहाँ के अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान जनाब शरीफ अब्बासी साहब तजदार के सदर भी है, आफ्ताब सलेरिया साहब सामने बैठे हैं, मिर्जा अख्तर साहब मेरे साथ खड़े हैं, डार साहब हैं और दीगर जितने भी जिम्मेदार हैं, ये बहुत ही जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और एक बात और, आज अलियाने गड़ी दुपट्टा के जो ताजर बरादरी है, मेरे सामने शरीफ बाजी साहब बैठे हैं, इन लोगों ने रजाकाराना तौर पर जो है वो शटर डाउन किए। इस पर भी इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। लोगों, 77 साल बाद मुझे और आपको अवामी एक्शन कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक सवाल बनता है। लोगों, 77 साल इस अशराफिया ने, इस हुक्मरान तबके ने मुझे और आपको
नजरियात में डिवाइड किया, हमें जमातों की बत्ती के पीछे लगा के रखा, हमें डिवीजनों में तकसीम किया, हमें अजला में तकसीम किया, हमें बरादरियों में तकसीम किया। किस लिए? इन्होंने अपने जो जाती मवादात थे, अगर ये हमें तकसीम ना करते तो ये वो हासिल करने में कामयाब ना होते। जब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की बुनियाद रखी तो एक तरफ हुक्मरान शराबिया ने हमारे साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे और दूसरी तरफ इन्होंने हमारे ऊपर राह के एजेंट के जो है वो इल्जामात लगाए। आप इनकी लायकियत का अंदाजा लगाए। सोचे क्या मोदी को सस्ते आटे और सस्ती बिजली से कोई फायदा होगा? अगर मैं और आप सस्ता आटा और सस्ती बिजली इस्तेमाल करते हैं तो मोदी को कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फिर इनकी एक लायकियत देखें। अब जब हम आगे चले, एक तरफ इन्होंने मुज़ाकरात किए और दूसरी बात जब हम लोगों ने सस्ता आटा और सस्ती बिजली हासिल की, ये कोई जो है वो हामियाली में ना रहे, ये हमने अपने बलबूते पे हासिल किया है। और इन बेघर तो इन बेशर्मों ने ये सस्ता आटा और सस्ती बिजली हमारे 3 नौजवानों का खून जब तक रोड पे नहीं बहा, इन्होंने नहीं दी। इनकलाब आएगा, अगली बात करें जब हम ये हुक्मरान तबका जब हमें एक तरफ राह का एजेंट कहता है, दूसरी तरफ इनकी खामख्याली आप देखें। ये जिनकी जमातों की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होते हैं कि फलां कारकुनान को हिदायत की जाती है कि अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में शामिल होगा। मुझे आप ये बात बताएं, मुझे और आपको हमारी परवरिश, हमारा दूध पानी, हमारी यूनिफॉर्म, हमारे बचपन से लेकर आज तक के अखराजात इन लोगों ने दिए या हमारे वालिदैन ने दिए? बताएं आप। वालिदैन ने दिए तो इनकी क्या औकात है? इनकी क्या औकात है कि ये हमें कहें कि फलां जलसे में आपने जाना और फलां में नहीं जाना? ये कोई हमारे ठेकेदार लगे हुए? इनको तो अपनी औकात में रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने और आपने असेंबली के अंदर भेजा है। इनकी क्या हैसियत है? ये तो एक मालची और पालची की हैसियत रखते हैं। लोगों, आज की इस कॉन्फ्रेंस के वसादत से मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि हम 77 साल बाद इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। ये मिस्त्री, ये सूरतकार कारीगर, ये मालची दलाल मकार दोबारा हमें डिवाइड करने के चक्कर में है। हमने मुनज़्ज़म रहकर एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हुए, अपनी जमातों, अपने नजरियात को साइड रखते हुए यकजा होकर जदोजहद करनी है। और आखिरी बात, 29 तारीख की जो कॉल है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की, पूरी कश्मीर के अंदर गैर मुअय्यद मुद्दत तक लॉकडाउन फैजाम शटडाउन की कॉल है, उसके लिए तैयार है। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी गैर रियासती फोर्सेस का जो है वो लाने की कोशिश की गई, हमारे नौजवानों पर तशद्दुद किया गया, तो पिछली 11 मई में और 29 सितंबर में फर्क ये होगा कि जो मई का महीना था उसमें तिम्बर का सोडा चलाया गया था। 29 सितंबर को अगर छेड़छाड़ की गई तो 29 सितंबर को तिम्बर का सोडा चढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद मेंबर एक्शन कमेटी मंसूर आलम साहब जो लिपा से हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि मुख्तसर अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करें। मंसूर आलम साहब। राजा सईद साहब की भी अभी नजर पड़ी है, मेंबर एक्शन कमेटी हमारे मुतारिफ रहनुमा है जनाब राजा सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ताजरा का वीर हफीज हमदानी जो दिन रात शब और रोज मेहनत करता है, इन सब के लिए तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंडाल पे बैठे हुए जितने भी गड़ी दुपट्टा के माज़ीन इलाका है, ताजर बरादरी के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के तलबा और बिलखुसूस वो नौजवान जिन्होंने इस पंडाल को सजाया, और एक ऐसे वक्त में कि जब हमारे जो सियासी नुमाइंदगान है जिन्हें ये जोर आ चढ़ा था कि एक्शन कमेटी जो है इस वक्त रियासत के मुखालिफ चल रही है, और उन्होंने बराह रास्त जो है वो अपने कारकुनान को इसका काज से और इस जो कमेटी का मिशन था उससे
जब हमने अपने हकूक की बात की, जब हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए, तो बजाय इसके कि ये हमें अप्रिशिएट करते या हमें ये कहते कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम इनके हकूक की जंग लड़ रहे हैं, हम हक हुक्मरानी की बात करते हैं, तो हम तो हुक्मरान नहीं है, हुक्मरान तो आप लोग हैं। हम जहाँ पे अवाम में बैठे हम ये चाहते हैं कि रियासत के लोगों को हक मलकियत दिया जाए, हक हुक्मरानी दिया जाए, वो जो 77 साल से जो हमारे हकूक सलब किए जा रहे हैं वो हकूक दिए जाए। तो हमें ये किस बुनियाद पे ये लोग कहते हैं हम सियासी कारकुन है, एक सियासी जमात का कारकुन हूँ। मुझे ये बताया जाए कि मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैंने अगर ये जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म में आया हूँ तो मेरी 3 नस्लें, एक नजरिए की कमी नहीं, तो मैंने यहाँ पे अगर आके खड़ा हुआ तो मेरी समझ में कुछ बात आई है कि ये जरूरी हो गया है कि ये 70 सालों से जो सियासी बुनियादों पे अवाम का इस्तेसाल हो रहा है, तो अवाम को अब अपनी आवाज के लिए खड़ा होना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि बिल्कुल हम हक पे खड़े हैं। इंशाअल्लाह आप लोग मायूस ना हो, आप लोग परेशान ना हो, तकसीम का शिकार ना हो। इंशाअल्लाह आप लोगों की फतह होगी, अवाम की फतह होगी, आने वाला वक्त अच्छा होगा। 29 तारीख को मैं अपने आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मज़ामत वाले लोग, ये जो सहूलतकार लोग हैं, ये हर जगह मौजूद होते हैं। हमने पिछले हफ्ते में वादी रीपा में एक प्रोग्राम करवाया, मेरे रहनुमा शौकत नवाज मीर साहब, हमने इनसे ये कहा कि हम 400-500 लोगों को बड़ी मुश्किल से जमा कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि जब मैं वहाँ पे हम अपने साथियों के साथ हमने वहाँ पे कैंपेन स्टार्ट की, तो वहाँ पे लोगों ने बिला जवाब यानी उसका कोई जवाब नहीं बनता था। हमारे कुछ लोगों ने वहाँ पे सहूलतकारी, मैं सहूलतकारी के लफ्ज को अपने उन साथियों के साथ तौहीन समझता हूँ, लेकिन उन्होंने किसी के कहने, सहूलतकारी का क्या मतलब होता है? जब कोई बंदा, मैं एक सियासी जमात का कारकुन हूँ, अगर मुझे कोई सियासी जमात का या मुझे कोई क़यादत ये कहती है कि आप अवामी हुकूक से पीछे हट जाए, तो मुझे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब मैंने हक और सच समझ के मैं किसी जगह पे खड़ा हो गया हूँ तो मुझे खड़ा रहना चाहिए। तो वहाँ लोगों ने मज़ामत की, हमारे खिलाफ काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 400-500 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 4-5 हज़ार से ऊपर लोगों को जमा करके ये साबित किया कि वादी रीपा के लोग हो या रियासत जम्मू कश्मीर के जहाँ कहीं भी लोग हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के लोग वफादार हैं, और इस रियासत के वफादार भी हैं और इस वतन के वफादार भी हैं, और आने वाले वक्त में हम ये साबित करेंगे, इस मुल्क के दफा भी हम करेंगे। और जब नजरिए की बात आएगी, जब वो वक्त आएगा, तो इंशाअल्लाह हम अच्छा फैसला करेंगे, जो हमारे साथ अच्छा रहेगा हम उसके साथ अच्छा रहेंगे। तो मैं आप सब लोगों को ये कहता हूँ, तो एक बात और कहना चाहता हूँ, खुसूसन दुकानदार लोगों को आखना चाहना, एक गल साफ सुथरी आखना चाहना कि दुकानदार कदे घाटे का सौदा नहीं करता। ये मैं तुम दुकानदारा को आखना चाहता कि दुकानदार कदे घाटे का सौदा नहीं करता। दुकानदारा सुन पहले कदे शटर बंद किया, अपनी दुकान बंद की, उस लोगों को कोई फायदे कहन देते। अगर हम 29 तारीख को भी दुकानदार शटर बंद कर सी तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ कहन का दे सी, और इस रियासत के लोगों को मायूस नहीं करता दुकानदार। अगर इंशाअल्लाह असी चाहते हैं ये तारीख पुरअमन रहा, ये जोड़े लोग असको इधर उधर खड़ना चाहते हैं, इस तारीख को इंतशार की तरफ खड़ना चाहते हैं, मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता अपनी जुबान में, देसी दोबारा में, कि ना करो खराब, ना हो खराब, ना आप खराब हो, मैं इस अवाम को करो। अगर तुम खराब कर सो तो खमियाजा भी पहले तुझे पकड़ना पैसी। इंशाअल्लाह ये शरीफ लोगों नंबर का छोटा जो सोटा अस वैसे रहने वास्ते रखा था, अस को चाकू भी नहीं, अस को किस भी नहीं, अस को सीने, इंशाअल्लाह अस सीने भी हाजिर कर सा कांडा दस्ते। इंशाअल्लाह इस रियासत से लोग नाल अगर खड़े हो गए तो गैरत का तकाजा ही है कि इंशाअल्लाह जड़े चार्टर ऑफ डिमांड को फिर उठे दिया, इंशाअल्लाह एक चार्टर पूरा भी होसी, और इंशाअल्लाह हमें क़यादत का भरोसा है कि जितने भी कौम में मिलाने नस्ते इंशाअल्लाह सबको पूरा भरोसा है कि वो लोग खुददारन गैरतमंदन इंशाअल्लाह इसका सौदा नहीं करने लगे, असी नाल पीछे खतरे दिया इंशाअल्लाह जब तक खड़े रह सकते। बहुत शुक्रिया जी। शौकत नवाज मीर साहब और चेयरमैन शरीफ अब्बासी साहब की इशारत से ये तय हुआ कि लोकल मुकर्रीन का हमने बिल्कुल सिलसिला खत्म कर दिया है। मुजफ्फराबाद से आए हुए हमारे ताजर रहनुमा और मेंबर एक्शन कमेटी साहबजादा वकास साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। साहबजादा वकास साहब, और जो भी मुकर्रीन आएंगे आप 2 मिनट में खत्म करेंगे, बहुत मेहरबानी होगी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह।
मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अपना टाइम चेयरमैन साहब को दूंगा। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा गढ़ी दुपट्टा के खासकर ताजरों का, सिविल सोसाइटी का और बुकला का, उसके अलावा जो स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत देता हूँ जनाब मेंबर एक्शन कमेटी ताजर रहनुमा राजा सईद साहब 2 मिनट के लिए अपने इज़हार ख्याल करें। राजा सईद साहब और तमाम साथियों से मैं गुजारिश करता हूँ जो पंडाल में कुर्सियां खाली हैं अपनी नशिस्त में तशरीफ रखें। पाक से इलियास कश्मीर साहब का शुक्रिया। राजा सईद साहब। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने उजाड़ डाली बस्तियां कभी तो उनका हिसाब होगा। मैं इस पंडाल में बैठे एक एक फर्द और गढ़ी दुपट्टा के ताजर बरादरी, चाहे वो कस्बा से है, चौक बाजार से है या मेन बाजार से है, जिसके चेयरमैन शरीफ अब्बासी साहब हैं और मेरे दोस्त जो मिर्जा अख्तर साहब हैं, शुजात काजी साहब हैं, मैं इतना भरपूर प्रोग्राम कराने पर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आजकल खास तौर पे जो आपने देखा होगा सुबह शाम जो एक्शन कमेटी के साथ एक बयानिया प्रमोट कर दिया जा रहा है। कभी ये कह रहे हैं कि ये राग एजेंट है, कभी ये कह रहे हैं कि ये इंडियन एजेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड अगर आप पढ़े तो उसमें से कोई एक शिक या एक नुक्ता भी अगर कोई जो आइन के मुतसादिम है या इनकी कहीं पे कोई ऐसा है कि हम खुदा न खास्ता इस सिस्टम को लपेटने की बात करते हैं, खुदा न खास्ता हम कहीं इनकी जो है वो कुर्सियां चाहे वज़ीर आज़म कोई बनना चाहता है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सिर्फ एक तसादम की तरफ रास्ते को लेके जा रहे हैं। जो इस रियासत के बड़े तो बनते हैं लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हो, चूंकि इससे वो हालात को तसादम की तरफ तो लेके जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे शायद वो ये नहीं समझते कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पिछले 2 साल से 2.5 साल से जो इस खित्ते की आवाम को जो शऊर दिया है, अब वो आपकी बातों में आने वाले नहीं है और आपके बहकावे में भी आने वाले नहीं है। चूंकि वो वक्त आ गया है जब आप जैसे लीडरान इंशाल्लाह इस खित्ते के कहीं किसी मार्केट में, किसी चौक चौराहे में या कहीं भी जाके खड़े होंगे तो इस रियासत का गैरतमंद नौजवान आपसे हाथ मिलाने द्वारा नहीं करेगा, आपको झूठों के हाथ बढ़ाए जाएंगे। वो वक्त आ रहा है कि आपको हम साबित करेंगे कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो खालिस्तान बुनियादी हकूक की बात करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोले हैं या नगर बगल जिनको यहाँ से कम अज कम है स्टेज से तो नहीं कहता, लेकिन वो भी अपने कद काट ये समझते हैं कि पता नहीं एक्शन कमेटी के साथ बात करेंगे तो कहीं खला न करे, वो मुक़्तदर आला में उनका कहीं ऊपर नाम लिखा जाएगा तो इन्हें कुछ नहीं देना। पिछले 78 सालों में अगर ये आपको कुछ नहीं दे सके तो अब भी मैं ये समझता हूँ कि रियासत का हर गैरतमंद जो जवान है वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कुव्वत बने और 29 तारीख को जब जम्मू कश्मीर अवामी कमेटी की जो कार है इसकी भरपूर ताकत के साथ आप निकले और तब तक इंशाल्लाह वापस नहीं आएंगे जब तक हम 38 मुकाम पे अमल दरामद नहीं कराएंगे, वरना हम इंशाल्लाह ये वादे कर देना चाहते हैं। इस दफा हमारे सीने भी हाजिर है और ये तिम्बर का डंडा जो कहते हैं ना, तिम्बर के डंडे को आप भी ना बोले और ये भी नहीं बोलेंगे क्योंकि तिम्बर के डंडे से ये इतने खायब हैं। रात को निजी टीवी के एक प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ये कहते हैं जी कि ये कह रहे हैं जी कि ये तो बहुत पुरान जो हमारी कार है, तो आप देखें जी ये तो अब तिम्बर के डंडे काटने शुरू हो गए हैं नौजवान। तो इस दफा हम तिम्बर का डंडा चढ़ाएंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हम इंतजार करें। तिम्बर का डंडा चढ़ेगा और चढ़ेगा फिर अपना काम भी करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी राजा सईद साहब। इसके बाद मैं 2 मिनट के लिए सार डार से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सार डार। नारा कश्मीर ये वतन इस पर हुकूमत इसका फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बशूर अवाम, नौजवान, ताजर, तुलबा, सिविल सोसाइटी, रक्षा यूनियन के मैं तमाम मेंबरान को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनने आज ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस रखी। हमारे जितने भी मुकर्ररीन थे उन्होंने सारी बात कर दी है, गढ़ी दुपट्टा के मसाइल, उसके बाद सारी चीजों के हवाले से हम सब ने आप लोगों को बता दिया है कि गढ़ी दुपट्टा ना के पाकिस्तान के खिलाफ है। अगर हम टैक्स देते इस असेंबली को देते,
अगर हम डिमांड भी रखते हैं इसी असम्बली से रखेंगे। ये जो नौसरबाज ये जो चूरन कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है, इंडिया की हिमायत में, तुम लोग इंडिया की हिमायत वाले, क्योंकि तुम लोगों ने सस्ती बिजली सस्ता आटा मांगने वालों को इंडिया के एजेंट का है, तुमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। अगर इनको आप लोग डंगर कहते हो, ये डंगर नहीं है, ये सावन के अंदर वो जो डड्डू होता है, ये डड्डू की तरह निकल के आगे टो करते चले जाते हैं। ये डड्डू है, इन्होंने गड़ी दुपट्टा के अंदर ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप जाके देखो, इन लोगों ने यहाँ पर टेंडर की मशीन नहीं चला सके। ये बात करते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें सस्ता आटा दिया, सस्ता बिजली दी। ये एक्शन कमेटी उनके लोगों के बाबू तक पहुंचते, हम इनके बाबू तक नहीं पहुंचते। हमारा बड़ा ज़र्फ है, हम रियासत के मालिक हैं, रियासत के वारिस हैं। ये नौजवान है, इन्होंने मुस्तकबिल तब्दील करना है। हम कभी इनको गाली नहीं देते क्योंकि हम इनका एहतराम करते हैं, पर जब कोई अवामी एक्शन कमेटी की खातिर एक्शन कमेटी के खिलाफ बोलेगा, ये तिम्र का डंडा उसके अंदर वहां तक चढ़ाया जाएगा जहां तक उसके मुंह से आवाज नहीं आएगी। ये हमारी मांग है। यहाँ पे नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई के लोग इस टाइम बागी बन के यहाँ पर आए। तुम्हारा जो बयानिया था कि हमारी जमात के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, ये हमारे नौजवान, ये आप लोगों के जमातों से बागी बन के एक्शन कमेटी की सपोर्ट में आए। मेरी कमेटी, एक्शन कमेटी, एक्शन कमेटी। मैं इस गड़ी दुपट्टा में ये जो आपके सामने दो हमारे भाई बैठे हैं, रियासत ने इनको क्या दिया? रियासत ने इनको कौन सी सब्सिडी दी? इनको कौन सा बेरोजगार अलाउंस दिया? हमारा एक नौजवान है यहाँ पे, चंदजेब चौधरी, एक काम से मजदूर है, पर वो इस टाइम भी आप लोगों के लिए इस जगह पर हर काम कर रहा है, कुर्सियां लगा रहा है, स्टेजू पे जा रहा है। कभी भी उसने अपना नाम नहीं लिया, कभी भी उसने तकरीर की बात नहीं की। ये हमारा फख्र है। हम इन नौजवानों के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। आप सब लोग मुतहद रहे। 29 को ये हुक्मरान तबका जो कहता है कि 29 को इमारतों को तोड़ा जाएगा, ये आग जलाई जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हम इसके खिलाफ हैं। हम कोई इमारत को नुकसान नहीं, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से ये बनी है। इंशाल्लाह अगर इन हुक्मरान तबके में से अगर हमारे आगे कोई आया, किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह नेपाल से बुरा हाल करेंगे। यहाँ पे नेपाल से बुरा हाल करेंगे यहाँ पे, ये याद रखना। यहाँ पर मैं उन पुलिस के नौजवानों की बात ना करूं तो कोई फायदा नहीं। 1 से लेकर 11 स्केल तक ये पुलिस के नौजवान हमारे साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। इन लोगों को 24 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी में सलील किया जाता है, इनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, इनको गलत कामों पे इनके सीनियर लगाते हैं। ये जो रिश्वत वाला कल्चर चला है, एक गाड़ी को ये इतना डीजल देते हैं जो टोटल 1 हफ्ता चल सकती है, तो इनके सीनियर कहते हैं मैनेज करो। ये कहां से मैनेज करेंगे? फिर ये कहते हैं कि हम मैनेज आवाम से करते हैं। इनके जो ऊपर सीनियर अफसरान है, इनको रिश्वत पर मजबूर करते हैं। हम अपनी पुलिस के साथ हैं, ये पुलिस हमारे साथ है। ये याद रखना नौजवानों, बुजुर्गों, ये जो बातें की जाती है, तुम पर तशद्दुद किया जाएगा, लाठीचार्ज की जाएगी, पुलिस भी भागी बन गई है, आपके साथ आ गई है। ये आपको फख्र महसूस करने की बात है। अगर उसके बाद ये जो इस टाइम नोटिफिकेशन हुआ है 2000, ये जो इस्लामाबाद पुलिस के नौजवानों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, 2000 तो कम है, 2 लाख को बुलाओ यहाँ पे। एक बात याद रखना, जैसे हमने पहले ये जो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह की जो शलवारें चौकू में लटकाई थी, इंशाल्लाह तुम्हारे नौजवानों की शलवारें चौकू में लटका के वापस भेजेंगे। ये हमारी बात याद रखना। हम आवाम की बात करते हैं, हमारा अपना जाती नजरिया, हमने कभी भी एक्शन कमेटी के अंदर आके नहीं बोला, हमने कभी अपना नारा इस एक्शन कमेटी के नाम पर आके नहीं बोला। हमारे पास अपने प्लेटफॉर्म मौजूद है। जब यहाँ पर हम आके बात करते हैं, मजदूर और मेहनतकश तबके की बात करते हैं, उस गरीब की बात करते हैं जो 30,000 के अंदर वो शादी का खर्चा भी उठाता है, बच्चों को तालीम के लिए भी भेजता है, बच्चों के लिए सौदा भी लाता है, काफिया पगड़े भी लाता है। पर एक हुक्मरान तबके मेरे साथ बैठे, उन्होंने ये जो मराद की बात आप कह रहे हैं, मराद की, हमारे साथ एक इसी गड़ी दुपट्टा में हमारा दोस्त बैठा, वो कहता है कि मेरी 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, मुझे सरकारी गाड़ी भी दी गई है, उसमें 200 लीटर सरकारी डीजल भी बनता है, पर मेरा इसमें गुजारा नहीं होता। तुम आराम खोरो, तुम्हारा गुजारा अगर 1.5 लाख भी नहीं होता, सरकारी मराद देने के बाद नहीं होता, इस गरीब मजलूम का 30,000 में कैसे गुजारा होता है? हम ये अपना आप तुम्हारी गर्दनों से लेके इस आवाम के हाथ में देंगे। ये आटा तुम्हें मिला है, ये एक्शन कमेटी ने दिया, किसी नौसरबाज हुक्मरान ने
भी नहीं दिया। ये दरवाजा के डडू चार्जर ये हमेशा आवाम के अंदर बरादरीज़म का जुर्म भेजते हैं। ये हमारे इन्हीं दिनों में एक सियासी बंदे ने बरादरीज़म का कार्ड खेला। हमारी राजपूत फैमिली हमारी दिल की धड़कन है। आज ये सारे यहाँ पे बैठे हैं, कोई बरादरीज़म यहाँ नहीं फैलाने दी। यहाँ पे एक ही बरादरी है, वो कश्मीरी बरादरी है। हम इलेक्शन कमेटी के साथ हैं। हम 29 को ये याद रखना, हम तो निकलेंगे। हमारे पास पाने के लिए 38 लगात हैं, तुम्हारे पास तो खोने के लिए सारा जान है। तुम्हारे पास मराद का खात्मा होगा। तुम लोग एक ऐसी ये नौसरबाज इस गड़ी दुपट्टा बाजार में 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में आके कहते हैं कि 20 रुपए किलो टमाटर सस्ता बेचती है, 20 रुपए महंगा बेचते। ये बेगैरत है। तुम 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी हमारे खर्चे से चला रहे हो। ये तुमसे हम लेंगे, ये जवान को तोहफे में देंगे। तुम लोग जाना घूमने के लिए, फिरने के लिए। ये गाड़ियां तुम्हारी है, ये असेंबली तुम्हारी है, ये अदलियत तुम्हारी है, ये रियासत तुम्हारी है। तुम इसके मालिक हो, तुम इसके वारिस हो। ये दरवाजा ये हो गए और 400 ब्यूरोक्रेसी तुम्हारे को फैसला करते हैं। 45 लाख कश्मीरी वादी का फैसला करते हैं। हम इनको फैसला नहीं करने देंगे। मेरे लोगों, हाथ खड़ा करके बताओ, 29 को बाहर निकलोगे? 29 को इन हुक्मरानों की मिराद के खाने के लिए निकलोगे? आवाज नहीं आ रही उस साइड के नौजवानों के, हाथ खड़े होने चाहिए। 29 को इनकी मिराद के खाने के लिए निकलोगे? अपनी आने वाली नस्लों के खातिर निकलोगे? इन हुक्मरानों, इन चोरों को आवाम के सामने लाओगे? इंशाल्लाह आप लोग हमारा फख्र है। हम ये एक नारा चलता रहे, वो थोड़ा सा लगाएंगे, उसके बाद कश्मीर के थोड़े नारे लगाएंगे, उसके बाद बता जाऊंगा। लम टींग टींग लम टांग टांग लम टींग दबाके हुक्मरान, सुलतान, चोर, नौसरबाज, स्कीम खोर, आवाज आनी चाहिए पीछे से। स्कीम खोर, पीछे से आवाज आनी चाहिए। स्कीम खोर, नौसरबाज, ये जो बेगैरत हुक्मरान है ना, इंशाल्लाह इनको, इनकी जो शलवारें चौकों में लटकाएंगे। उसके बाद ये एक नारा है, हम सब ने इसको माना है, इसका सब जवाब देना है, क्योंकि ये रियासत हमारी है, हम इसके मालिक हैं, हम इसके वारिस हैं। हम ये जो नारा लगाते हैं, हक गुमनानी और हक मलकियत की एक बात करते हैं, वो वाज़ेह हो जाती है। ये वतन, सब हाथ खड़ा करके बोलेंगे, क्योंकि ये वतन अगर आपका है तो आपने इसके वारिस है, तो हाथ खड़ा करने में आपको कुछ नहीं होगा। ये वतन इसकी खातिर, इसकी खातिर, इसकी हुकूमत, इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत, नारा कश्मीर। इसके बाद मैं 2 मिनट के लिए तमाम नौजवानों से गुजारिश है, जनाब आमर इनकलाबी साहब जेल वैली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर उठे तो सही, जुल्म के सामने कभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा। सर उठे तो सही, जुल्म के सामने कभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा। और तभी गरीबों के दरबार पर हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। मेरे दोस्तों से वो आके कि आज तो सब भाई में तकरीर करनी है, तो मैं 2 गला कर सा, तो इजाजत चल सा, मैं बोला अगर का खून इंशाल्लाह डर चल वाले अंदर है नहीं। मैं तुसी एक गल दसो, मैं बड़ा होया, मैं मारे मां प्यू पालिया, मैं सारा जो चुना देता। अगर मैं नालायक हुआ, मैं किसी और का मतलब चुना, तो मैं हमारे घराले की आसन ए डंगर है, ए जनाब बगैरत है, तो मेरे तो हमारी नजर आगू आज एक पोस्ट गुजरी, और पोस्ट गुजरी कि ऐसा डंगर आखन ते आपने प्यूर डंगर ये नहीं आखते। तो मैं तो सो इस देश को ए बात पैगाम देना कि तुसी ऐसो रात एजेंडा दो, तुसी ऐसो बता दो, तो तुसी आपने प्यूर क्यों आता आधा घंटा तो तू गल ए करना चाहना कि जरा गली के अंदर ए सूरतकार आगा से दुकानदार हो यातन, आगा से लोगों ए गलातन, क्या दुकान बंद न करो, क्या तू सब फ्यूचर दुकानें रहे और भाई इस दुकान का खर्चा में देना, इसकी बिजली का बिल में देना, ये तू सब फ्यूचर दुकानें इन्हें सुलझदारो। मैं गल दसना चाहना क्या तुझके अंदर हिम्मत है, तुझके अंदर ताकत
تو چلے گا پتر سمجھا اگر ایسا بننا چاہیے تو تجھے پریپار ہو اور میں آخری گل شوکت نواز میر صاحب دسنا چاہنا کہ ایسی ایک بات بڑے صورتکار دے کہ ہاتھ اتر کرتے ہیں چلے میری تو بہت اصل صورت یہ تھی دنیا میں اندر لوگ ایک ڈگریاں ٹاؤن دیے صورتکاری ہوئی کی دیے اس طرح سے اپنی یہ صورتکاری میں اندر کی دیے اے جلال مہاراج ہے اس وقت جو یہ کہہ رہے سو کوئی قسم نہیں چھوڑی اس سب کو بڑا پوٹ پالچر ہے ایک اتنا زبردست قسم کا پوٹ پالچر ہے کہ ایک زبردست قسم کی چمک کرتا ہے اور آخری گل چونکہ میں اسی علاقے تھا میں شوکت نواز میر صاحب تو سے دسنا چاہنا کہ اٹھیاں دے اندر 3-4 دن بعد تسی ٹائم دے سو میں عوام اور نوجوانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع بیٹھا کرنا چاہنا میں نوجوان چیلنج میری دی وساطت تو سوچ دینا چاہنا میں دیکھتا کہ تسی صورتکار تیز ہو یا عوام تیز ہے انشاءاللہ سارا پرامن احتجاج ہے تو سب کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو عوام تسے پڑھ سے انشاءاللہ میں اس کے بعد دعوت اختیار دیتا ہوں سہیل مغل ممبر ایکشن کمیٹی مظفر آباد 2 منٹ میں اپنا اظہار خیال کریں ہم نے لوکل جتنے مقررین تھے ان کا ٹائم ختم کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ وقت مختصر ہے تو میں اپنی بات کو جتنا چاہتا ہوں مختصر کروں لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ دیکھتے ہو اخبار بھی تمہارا ہے پھول مظلوم اپنے ہی بہنے والا ظلم کا دور اپنے ہی رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تم ہو پھر تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا سب سے پہلے تو میں گھڑی کے نوجوانوں کا بزرگوں کا بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے بات سنی کہ کوئی صورتکار کہہ رہے تھے کہ گھڑی پہ کنفرنس بہت مشکل ہے یہاں پر جو لوگ ہیں تقسیم میں برادریزم میں علاقائزم میں آج آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ آپ برادریزم کو بھی جوتے کی نوک پر رکھتے ہو اور علاقائزم کو بھی جوتے کی نوک پر رکھتے ہو کیونکہ وقت مختصر ہے تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے وہ وزیر اعظم جو میڈیا پر کہتا ہے کہ یہ پرامن جدوجہد کی بات کرتے ہیں پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں مگر یہ تمر کے سوٹے کس لیے کاٹ رہے ہیں تو ان کو ہم 29 کو بتائیں گے کہ تمر کے سوٹے جو بیرون ملک سے فورسز بلا رہے ہو ان کے لیے کاٹ رہے ہیں ان کو علاج کروا کر یہاں سے واپس بھیجیں گے بہت شکریہ جی اس کے بعد میں دعوت اختیار دیتا ہوں ہوٹل ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کے صدر راجہ الیاس خان صاحب کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں میں لوکل مقررین سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے ہم لوگ خود بھی خطاب نہیں کر رہے تو اس لیے ہم نے پروگرام کو سٹارٹ کیا ہے راجہ الیاس خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام گڑی دوپٹے کے جو بھی معزز دوست ہیں جنہوں نے اتنا شاندار پروگرام منعقد کیا ہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں ان کا شکر گزار ہوں دوستوں میرے لیے ٹائم کی قائد نہیں رکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ 60 سال کے اوپر والے لوگوں کو ویسے کنسیشن دے دیتے ہیں لیکن میں بہت ہی مختصر بات کروں گا ان کا بھی شکر گزار ہوں محترم دوستو سب سے پہلے میں قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں اور اگر یہاں کوئی سہولت کار ہے ایجنسی کا کوئی نہ کوئی آدمی ضرور ہوگا وہ حکومت تک وزیر اعظم صاحب تک اس قرارداد کو ضرور پہنچائے میری قرارداد یہ ہے کہ 29 تاریخ کو یا 29 سے 2-3 دن پہلے ہمارے پیارے حکمران ہمیں چھوڑ کر اسلام آباد نہ جائیں آپ کو منظور ہے کیونکہ جیئیں گے تو ساتھ جیئیں گے مریں گے تو ساتھ مریں گے میرے پیارے بھائیوں جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے میں کہیں بھی تشدد کا لفظ ہے ہی نہیں ہے
हम परमन लोग हैं, हमारी 2 तहरीकें चली हैं, गमले तक नहीं टूटा है। ये जज्बाती बातें ये तंग आए हुए नौजवान करते हैं, इनको तंग हुकूमत खुद करती है, हुकूमत के वज़रा खुद करते हैं। मेरे यहाँ भाई राजा शहीद साहब ने तिब्बर के डंडे का कहा है, उन्होंने तिब्बर के डंडे को मारने का नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि तिब्बर का डंडा बवासीर वाले मिनिस्टरों का इलाज है। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए ना, ये वैसे हम लड़ाई नहीं करते। तो मैं आखिरी बार जनाब शौकत साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके लिए ये लोग कहते हैं ये इंडिया का एजेंट है, ये रा का एजेंट है, तो मैं आप सबको बताता हूं कि हम अगर इन सहूलतकारों की मौत है तो इंडिया के लिए हम मलकल मौत है। शौकत नवाज मीर अगर एजेंट है तो कश्मीरी कौम का एजेंट है, और फख्र से मैं कहता हूं हमारा एजेंट है। आखिरी मेरी गुजारिश ये है कि मैं ओवरसीज में जो हमारे भाई कश्मीरी बैठे हैं, जो हमारी जंग लड़ रहे हैं, जो हमारी कात पे खड़े हैं, आज हमारे कोर कमेटी के मेंबर जिनके लिए ये कह रहे हैं राजा अमजद अली खान साहब भाग गए, वो उनकी मौत के ताबूत वहां तैयार कर रहे हैं। शौकत नवाज मीर साहब, आप अपनी तकरीर में ऐलान करें कि इन 53 लोगों को भी सिक्योरिटी हम देंगे। ये 53 लोग, शौकत नवाज मीर साहब मुखातब कर रहा हूं आपको कि ये 53 लोग काबिल एहतराम जो हमारे हैं, इनको पाकिस्तान से सिक्योरिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये हमारे अंदर रह गए काबिल एहतराम लोग, इनको सिक्योरिटी भी आप दिलवाएंगे इंशाल्लाह। मैं इसके साथ आप सबका शुक्रगुजार हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह जीत आपकी है, जीत हक की है, और ये 53 का टोला इंशाल्लाह नाकाम होगा। नाकामी इनके मुकद्दर में लिखी गई है। आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा, कोई एक आदमी मुझे बता दे इस वक्त हुकूमत किस पार्टी की है? ये हुकूमत किसने बनाई है? एक आदमी के पीछे ये उन अपने आकाओं के लिए और नमाज देते हैं, तो फिर एजेंट हमें कहते हैं, तो फिर आप बताएं एजेंट कौन है? बसलाम।